students, this is the chapter number 9 and we are studying about the religious and social reform movements. So in the previous video we had read about the Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati and Mahadev Govind Ranade. And now today we will read about the Jyotiba Phule. Jyotiba Phule founded the Satyasodhak Samaj in Maharashtra and also started a school for Dalits. He opposed untouchability and launched a movement and was able to make the society aware of the problems of the Dalits. He was a staunch supporter of widow remarriages and himself set an example in this field. तो ज्योतिबा फुले भी एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में और उन्होंने दलित के लिए स्कूल भी खोला. जैसे कि बाकी के जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे ये भी अनटचेबिलिटी के विरोधी थे और इन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसके ये बहुत बड़े समर्थक थे. नाउ स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन. Another important social reformer in the 19th century was Ramakrishna Paramhans and he favored ideal worship. His favorite disciple Swami Vivekananda later on propagated his speeches and teachings to the common man. Swami Vivekananda was born in a well-to-do family of Bengal in 1863. In his childhood, he was known as Narendra Nath Dutt. It was the search of knowledge that led him to Swami Ramakrishna Paramhans and deeply inspired him. Vivekananda established Ramakrishna Mission in 1897. एक और सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के रामकृष्ण परमहंस जी और वो फेवरेबल आइडियल वर्शिप को महत्व देते थे. उनके फेवरेट जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे जो कि उनकी स्पीचेस से और उनकी टीचिंग्स से बहुत ही प्रभावित थे और बाद में उनकी टीचिंग्स को उनकी स्पीचेस को उन्होंने कॉमन मैन तक पहुंचाने का काम किया. अब स्वामी विवेकानंद जो थे बंगाल में 1863 में उनका जन्म हुआ और बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. नॉलेज की खोज में वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की. द मिशन डिड commendable relief works in flood, famines and epidemics and ran educational institutions. The mission respected all religions and worship rights. He believed that Indian culture was the best of all. And he helped to raise the prestige of Indian culture in the foreign countries. तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो सभी धर्मों का समान आदर करते थे और वह उनका मेन उद्देश्य जो था वो समाज की सेवा करना था और वो इंडियन कल्चर में बहुत बिलीव करते थे और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी इंडियन कल्चर की महानता को वहां पर उन्होंने बताया कि हमारा इंडियन कल्चर कितना महान है. Students, you have to read the chapter very deeply and very carefully. Now, Theosophical Society and Annie Besant. Madam Blavatsky and Colonel Alcott had established Theosophical Society in the US. In India, the headquarters of the society was at Adyar near Madras. Mrs. Annie Besant accepted its membership in 1889 and when she came to India in 1893. She started working for the society. In 1907, she was appointed president of the society. तो मैडम ब्लावत्स्की जो थी वो कॉलिनर एलिकॉट थे. उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी यूएस में और भारत में इसका हेडक्वार्टर मद्रास में बनाया गया था. मिसेस एनी बेसेंट जो थी 1893 में वो 1889 में वो उन्होंने इसकी मेंबरशिप ली भारत की और फिर वो यहाँ पर भारत में 1893 में वो आ गई. इसके बाद उन्होंने अपना सोशल वर्क यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया. 1907 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट चुनी गई. अब इस समाज के भी कुछ उद्देश्य थे. समाज की सेवा करने के कई तरीके थे, कई उद्देश्य थे जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे. एक यहाँ पर बताया गया कि 1898 द सोसाइटी एस्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन वाराणसी. इस सोसाइटी ने सबसे अच्छा काम किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में एस्टैब्लिश किया 1898 में.
और भी बहुत सारे काम थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किए गए समाज सेवा के, जिसको आप अच्छे से रीड करेंगे। बिसाइड्स दीज रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, Narayan Guru also actively worked for social and religious movement in India. Now, Muslim society and reform movements. The Muslim society was also beset with love of evils. Several Muslims, intellectual and scholars, took up pioneering steps in removing the evils and inspired the Muslim society. तो मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने कि समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और मुस्लिम सोसाइटी को इंस्पायर करने की कोशिश की और वहां की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। नवाब अब्दुल लतीफ फाउंडेड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी of Calcutta in 1863 and it played an important role in the spread of education and also worked for Hindu-Muslim unity. तो इस सोसाइटी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया काम किया और इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी 1863 में। और इस सोसाइटी ने बहुत सारे ऐसे वर्क किए जो कि जो समाज के सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हुए और मुस्लिम और हिंदुओं की एकता में एक बहुत बड़े योगदान के साक्षी बने। रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ पारसीज एंड सिख्स। In 1851, the Parsis founded a religious reform union which aimed at restructuring the social conditions of Parsi society and re-established the pristine of glory of Parsi religion. तो 1851 में पारसीज जो थे उन्होंने भी समाज के सेवा के लिए, समाज के सुधार के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए सोशल कंडीशंस को पारसी सोसाइटी की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी एंड नौरोजी फुरदोनजी वर एमंग द पायोनियर्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ पारसी कम्युनिटी। तो पारसीज जो थे उन्होंने भी पारसी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए और उसे अच्छा समाज सुधार में उपयोग करने के लिए उसकी सिद्धांतों को समाज सुधार के कार्यों को किया। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फुरदून जी जो थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म एज अ सोशल रिफॉर्मर पारसी कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया। And inspired by the Western education and reforms movements, Sikh also started efforts to bring changes in their society and community. और इसके बाद सिखों ने भी जब ये सारे वेस्टर्न एजुकेशन और सभी मूवमेंट्स को देखा तो उन्होंने भी अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचा। So students, you have to read all these points very carefully and very deeply. And in the next video we will read about the impact of reforms on Indian society. क्या impact पड़ा इंडियन सोसाइटी का इन रिफॉर्म्स का, इंडियन सोसाइटी पर इन रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।